Yoga Therapy and Naturopathy Center. Myself, Dr. Radhika Vazalwar and Dr. Madhuri Indurkar, who is my partner in our Samatvam Therapeutic Center. We welcome all of you for the lecture on Chakra Philosophy by Bharat Ji Gupta. So before going to start, I would like, or I would say that we should start our session with 3 Omkar and prayer. So may I request all of you to sit straight. May I request all of you to sit straight. Hands in Jnana Mudra on your laps. Eyes closed. Sit comfortably. We will start our session with 3 Omkar. Inhale deeply. व्हिडिओ चालूच राहील सारखं Namaskar Mudra. We will chant the opening prayer all together. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाइए, हल्के से आंखों पे रखिए, संपूर्ण शरीर पर से हाथों को घुमाइए. हम अपनी शुरुआत करने के पहले I would like to introduce our guest faculty. He is Mr. Bharat Gupta और इनके बारे में जितना भी कहा उतना कम ही है, बिकॉज मैं इनको अभी 2015 से जानती हूँ. आरोग्य भारती से हम कनेक्ट हुए थे. आरोग्य भारती एक संस्था है जिसके द्वारा हम कनेक्ट हुए थे और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज ये एज में भी वो जिस प्रकार का योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इट इज रियली अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग फॉर अस एज अ यूथ. वी आर रियली इंस्पायर्ड बाय यू गुप्ता जी. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट विच यू ऑलवेज गिव अस टू प्रमोट योगा इन सोसाइटी. इनके बारे में बताना अगर है तो ही इज योगाचार्य भरत गुप्ता, 71 years old. Yesterday only कल ही इनका जन्मदिन था और ये 71 टर्न हुए हैं. और इनका स्पिरिचुअल नेम है योगी सत्यानंदा. Basically, he is an engineer and retired from Steel Authority of India as Assistant General
connected with almost all yoga and spiritual organizations of India and obtained special training from all of them. He is pursuing PhD in Yoga Science from Yoga Sanskritam University, Florida, USA. He had completed his masters in Yoga Science from Kavi Kalidas Kulguru University at Ramte. He is teaching various subjects of yoga to the undergraduate and postgraduate students at Chakrapani College of Yoga and Naturopathy, which affiliate to the also, he is giving lectures on various subjects of scientific yoga at other places like Ayurveda colleges, IT industries, institutions, public places, colleges, schools, organizations, factories, etc. in Vidarbha and also in Pune region. Also extending his scientific yoga knowledge and experiences in many cities of other countries like USA, Australia and New Zealand since last 11 years. He has been honored and awarded by many international, national, state and local organizations. Though the list is really very big, that from many institutions and organizations he has been honored for his dedicated services towards the betterment of mankind all over the world. So these are the very less points which explains about Bharat ji. There are so many positive things about Bharat ji, but we don't have time to just elaborate all the things. So this was the short introduction about Gupta ji. And as we हम लोग देख रहे हैं कि आज बहुत से हमारे साथ नए पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी संस्था के बारे में देना चाहेंगे। हमारी संस्था जो है वो समत्वम नाम से हम चला रहे हैं, समत्वम फाउंडेशन। In that foundation we promote yoga and naturopathy therapy to the society in a very scientific way. एंड हमारा टाटा टोपे नगर में सेंटर है जहाँ पे हम नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपेटिक योगा का प्रैक्टिसेस वहाँ पे हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपी। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हमारे साथ मेरे जो पार्टनर है वो डॉक्टर माधुरी इंदुरकर है। शी इज अ हेयर स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो अ नेचुरोपैथ। So we together just try to spread the knowledge, the ancient knowledge yoga and naturopathy to the society. Now may I request Bharat ji to take over the lecture and please start your lecture on chakra philosophy. Over to you, Mr. Gupta ji. सभी को नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो राधिका जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके साथ में जो भी नॉलेज अचीव किया है वो शेयर कर सकूं आपसे। और आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे इस सेशन में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी जुड़े हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। और जैसा कि आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि हम लोग जूम पे है और हो सकता है कि 45 मिनट्स के बाद में एक ब्रेक 45 है, तो हम लोग का 2 घंटे का सेशन रहेगा। उसमें बीच में अगर आती है गैप, वैसे राधिका जी ने कोशिश किया है कि 2.25 घंटे का सेटअप, पर बीच में अगर कुछ होता है तो प्लीज आप इसे करेंगे मुझे, क्योंकि इतने सारे लोगों को वो भेजना पॉसिबल नहीं है। तो मैं राधिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो इसको रिकॉर्ड कर ले पूरे सेशन को। तो फिर मैं
जिन जिन को भी फिर रिकॉर्डेड सेशन चाहिए तो हम लोग उनको बाद में भेज सकते हैं। और जो राधी जी का जो ग्रुप है उसमें वो तो उनको जोड़ लेंगे, प्लस हमारा जो योग का ग्रुप है वो भी हमने उनको दे दिया है, तो वो लोग जुड़ जाएंगे। पर जो योग ग्रुप में हमारे साथ या राधी जी का साथ में अगर नहीं है तो उनको थोड़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों को से आईडी भेजना और पासवर्ड बनना पॉसिबल नहीं है। तो मैं राधी से निवेदन करूंगा कि वो इसका रिकॉर्डिंग कर ले ताकि हाँ, तो हम लोग सेशन शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरली हम जब विदेश जाते हैं तो ये योग से ज्यादा वो लोग आता है इंक्वायरी हम लोग को, मैं और मिसेस हम दोनों योग टीचर वहाँ सिखाते chakras, what are kundlis, what are nadis. Please tell us. They are so much interested to learn all these things apart from the Ashtanga Yoga. तो आज हम लोग वो चक्र के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली है क्या, और ये अगर ब्लॉक हो जाता है तो उसके क्या इंडिकेशन होती है। अगर ये ओपन हो जाए तो हमको क्या क्या सिद्धियां मिल सकती हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं बिना व्याधि के, कोई भी प्रकार की व्याधि, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज 2 घंटे का समय है। एक्चुअली ये विषय बहुत लंबा है और समय बहुत कम है, और उसमें फिर मुझे थोड़ा सा चक्र के बारे में बताना है, सभी चक्रों के बारे में बताना है, और बाद में लास्ट में हम लोग चक्र मेडिटेशन भी करेंगे। क्योंकि आप जब देखेंगे कि हर एक चक्र के तो आप समझ जाएंगे, आपको अगर कोई डिजीज है तो आप समझ जाएंगे कि मुझे कौन सा चक्र मेरा वीक है। तो उसमें दिया गया है कि आपको चक्र आप कैसे उसको स्ट्रांग बना सकते हैं और उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें उसमें दी गई है। तो वो रिकॉर्डेड मैसेज और जो लाइव में देखेंगे उनके लिए तो वो मिल जाएगा। और प्लस लास्ट में हम लोग वो चक्र की शक्ति कैसे बढ़ाना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, तो स्पेशली चक्र मेडिटेशन हम लोग करेंगे। तो ये अभी जो हम लोग अभी चक्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके पहले तो मुझे लगता है कि हम लोग पहले ये जाने कि नाड़ी हमारे शरीर में जो है, देखिए चक्र क्या है, एक एनर्जी सेंटर्स है। तो उसके पहले हमको जानना है कि ईडा पिंगला है ना, मून की नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो है ये ईडा है लेफ्ट वाली, और राइट वाली है वो पिंगला है। और जनरली क्या होता है, हम लोग की जो नाड़ी है ना वो 60 मिनट या 90 मिनट के बीच में चेंज होते रहती है। जैसे रियोस्टेट होते हैं, जो इंजीनियर हो तुमको पता होगा कि वो बराबर जैसे अपना हम लोग एसी सेट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना, तो वो पूरा कंप्रेसर तो हरदम चलते नहीं रहता, जब उसको जरूरत पड़ती जब ही चलता है। तो हमारी बॉडी का भी है टू मेंटेन द टेम्परेचर, है ना, टू मेंटेन द एनर्जी, टू काम आवर माइंड, टू बैलेंस आवर माइंड, बैलेंस आवर बॉडी। इसके लिए ईडा पिंगला जो है वो नाड़ी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो लोग योगिक प्रैक्टिस करते हैं उनका क्या होता है, उनके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। जब वो अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं तो वो स्विच कर लेते हैं ईडा के तरफ। जब उनको कुछ एनर्जेटिक काम करना रहता है तो वो स्विच हो जाते हैं पिंगला की तरफ। और ये भी होता है कि उनके आप लोग को पता होगा शायद कि कुंडलिनी शक्ति जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी में है वो तभी ऊपर जाएंगी जब हमारी पहले तो सब नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, सबसे प्रथम। दूसरा, ईडा और पिंगला अगर बैलेंस हो जाती है तो ही फिर हमारी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव होगी, और जो कुंडलिनी शक्ति है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यानी सर्पेंटाइन एनर्जी ऑयल के समान होती है, वो 3.5 इसमें घेरे में वो सोई रहती है। तो ये शुद्ध होने पर कुछ हमारी जो योगिक क्रिया होती है उससे वो फिर ऊपर 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 जाती है और हर चक्र को पेनिट्रेट करते रहती है। तो ये बहुत बड़ा शास्त्र है। सिर्फ हम लोग अगर चक्र के ऊपर बात करेंगे तो वो कुछ समझने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि नाड़ी तो मैंने बता दिया, 3 नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और 72,000 के ऊपर नाड़ियां हैं। पूरे शरीर में अदृश्य नाड़ियां हैं, पूरा नेटवर्क है, और वो क्लीन होना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि
योग जो हम लोग करते हैं, योगिक प्रैक्टिस करते हैं, अष्टांग योग का फॉलो करते हैं, उसमें हमारी नाड़ियां शुद्ध होती है ना। बाकी तो चीज सब लोग बताते हैं, नाड़ियां शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जिसकी नाड़ियां शुद्ध हो गई है तो फिर क्या होता है, वो नाड़ियां जो है ना अलग अलग बंच में, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, वहां पे वो अलग अलग चक्रास के सेंटर है, ठीक है। और फिर जब नाड़ियां से इसके बंचेस हर एक नाड़ी, हर एक चक्रास को मिलती है, मे बी इन द 1000, मे बी इन द 2000, डिपेंड्स अपॉन द चक्रास, तो वहां जाके मिलती है। और वो अगर शुद्ध हो जाती है तो हमारे चक्र भी शुद्ध होंगे। आप कितने भी शुद्धि प्रक्रिया कर लीजिए चक्रास की, पर वो नहीं होंगे जब तक आपकी नाड़ी नहीं शुद्ध होगी। और नाड़ी कब शुद्ध होगी, जब आपको योगिक प्रैक्टिस, अष्टांग योग का आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नाड़ी शुद्ध नहीं, ठीक है ना। उसमें खान पान, आचार विचार, रहन सहन वगैरह आ जाता है। तो ये हम लोग ने अभी नाड़ी के बारे में जाना, फिर थोड़ा प्राण के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे जो प्राण बोलते हैं वो उसके 5 कैटेगरीज है ना। यानी उसने डिवाइड कर दिया है प्राण ने अपने को 5 स्टेजेस में, 5 सेक्शंस में। तो पूरा हमारे शरीर को 5 भाग में बांट दिया गया है। जो कंठ से लेके ऊपर तक वो हमारा उड़ान है, उड़ान प्राण, जो कि पूरी तरह से क्या करता है, ऊपर के जितने कंट्रोल्स है उसमें सब आ गया है ना। हमारी इंद्रियां आ गई है, हमारा ब्रेन आ गया है ना, सब कुछ आ गया है। तो ये जो है वो उड़ान प्राण है। अब इसके भी अलग अलग प्रोसीजर्स है। उड़ान प्राण आपको अगर शक्ति में बनाना है, उसको बैलेंस करना है, तो उसके अलग प्रोसीजर्स है। फिर कंठ से लेके नीचे हमारे हृदय तक, उसको बोलते हैं प्राण, ठीक है। वो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका ध्यान रखता है। फिर वहां से अगर हृदय से नाभि की ओर जाएंगे तो वो है समान, है ना, मेन, या ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सब आ गया, लीवर आ गया, स्टमक आ गया, पेंक्रियास आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब आ गया, तो वो उसका केयर लेगा। और फिर अपान यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जो भी है वो अपान वायु, वो कहाँ से रहेगी, हमारी जो नाभि है और नीचे तक मेरा मूलाधार चक्र, यानी लास्ट पॉइंट ऑफ आवर स्पाइन, ठीक है। और जहाँ एनस है, जहाँ मल त्याग करते हैं, वहां तक रहेगा। और फिर एक होता है कि ध्यान, यानी पूरे वो एनर्जी है, वो जो शक्ति है, वो पूरे हमारे शरीर में घूमते रहती है ना। तो ऐसे डिवाइड कर दिया है प्राण। तो ये भी जानना जरूरी है इसके साथ में। अब चक्रास के बारे में चलते हैं। तो चक्रास में अपने शास्त्रों में लिखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक फूल का आकार देते हैं, जैसे कमल का फूल है ना, लोटस वाला, कुछ लोग व्हील्स के आकार देते हैं। तो ये दोनों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। और ऐसा कहा गया है कि आपका जो शरीर है उसमें कौन से डिजीज है, आपका मन कितना पवित्र है, आपकी आत्मा कितने पवित्र है, आपके इमोशंस कितने पवित्र है, इस पर डिपेंड है कि आपकी जो वो व्हील का जो स्पीड है। हमारे जो चक्रास है ना, वो हरदम स्पीड में, उसके अलग अलग स्पीड में वेरिएशन चलते रहते हैं। जैसे नीचे का जो हमारा मूलाधार चक्र है, आप उसका अगर रोटेशन देखेंगे तो कम है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चक्र में जाते रहते हैं और ऊपर जो शस्त्रार है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो ये स्पीड इंडिविजुअल से वेरी होते रहता है, ठीक है। तो वही हम जितना अपने को शुद्ध करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारे चक्र, उतने कुंडली, उतने नाड़ी, सब ये शुद्ध होते रहेगी। तो और जिनके ब्लॉक होते हैं, जिनके चक्र शुद्ध नहीं है, जो आचार विचार, रहन सहन, खान पान वगैरह योगी स्टाइल से नहीं करते हैं, तो उनके क्या होते हैं, चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर चक्र हमारे ब्लॉक हो गए हैं तो निगेटिव एनर्जी, हमको जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो उसमें से आती ही नहीं है, या बहुत कम अमाउंट में होता है। इसलिए फिर हम नाना प्रकार के शारीरिक रोग, मानसिक रोग इससे ग्रस्त हो जाते हैं, है ना। और जिनका ऐसा भी होता है बहुत बार कि बहुत ज्यादा यानी विदाउट मार्गदर्शन, विदाउट गाइडेंस ऑफ गुरु, अगर हम लोग बहुत अपने आप को एनर्जेटिक बनाते हैं, चक्र का शुद्धिकरण करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा शुद्धि भी हानिकारक है। वो शॉर्ट सर्किट कर देता, जो हमारी एनर्जी आती है यूनिवर्स से, उसको शॉर्ट सर्किट कर देता। तो कोई भी न कम न ज्यादा, वो जरूरी नहीं है। हर एक चीज में आप खाना भी खाते हैं, कम खाएंगे तो नुकसान, ज्यादा खाएंगे, हर एक इसका एनर्जी का भी ऐसी है। तो प्रॉपर मार्गदर्शन में वो आपकी उनके पास में सिस्टम्स रहती हैं जो आपका ओरा चेक करते हैं। आजकल तो खैर
ऐसे फोटोग्राफ्स निकलिए कि आपका ओरा चक्र, तो ओरा कब आपका बढ़ेगा, घेरा कैसे बढ़ेगा, जब आपकी नाड़ी शुद्ध होगी, आपके चक्र शुद्ध होंगे, है ना, तो आपका मन, आपकी आत्मा, ये सब शुद्ध होंगे तो आपका ओरा ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये तो थोड़ा मैंने प्रस्तावना दे दिया, अब हम लोग चलते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसको, ज्यादा समय तक उसको एक रिकॉर्ड भी रख सकेंगे और समझ भी सकेंगे। तो राधिका जी मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, है ना, ओके। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग आज का विषय। तो आज का हमारा फिलोसफी भी और साइंस भी रहेगा। अच्छा करिए ना कि नाड़ी कितने महत्व की है, कौन सी ईडा पिंगलर नाड़ी या चक्रास वगैरह सभी इसमें दिया गया है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो नए लोग हैं उनके लिए जरूरी ये सब जानना। आगे चलते हैं, ये चक्र का बेसिक्स आप ध्यान रखिए इसमें कलर्स में, क्योंकि हम लोग लास्ट में जो इसका मेडिटेशन करेंगे उसमें ये कलर्स पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि मूल आधार चक्र है जो सबसे लोएस्ट एंड, यानी एट द एंड ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे जो है वो हमारा मूल आधार चक्र होता है, यानी रूट चक्र होता है, जिसका कलर होता है रेड, है ना। फिर और हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं जहाँ हमारा पैल्विक रीजन है ना, वहां पे वो है हमारा नारंगी रंग, ऑरेंज रंग, उसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। फिर थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो हमारी नाभि जो नेवल है वहां पे जो होता है वो मणिपुर चक्र होता है ना, सोलर प्लेक्स बोलते हैं उसको, तो वो पीले रंग का होता है। फिर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो वो हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, वो जो ग्रीन कलर का होता है। फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग तो हमारा विशुद्धि चक्र, जहाँ हमारा जो कंठ है ना, वो उसके एग्जैक्टली सेंटर में हमारा विशुद्धि चक्र रहेगा, जिसका कलर है हम लोग बोल सकते हैं कि इसको ब्लू कलर, है ना। फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आज्ञा चक्र, तो थर्ड आई चक्र, है ना, जहाँ पे हमारा आज्ञा है ये वहाँ, तो वो उसका हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डार्क, जैसे बोलते हैं ना कि इंडिगो, है ना, वो कलर रहेगा। आप लोग को दिख ही रहा है वो चक्र, और ऊपर से और जाएंगे तो वो एकदम जामुनी हो जाता है, वो शस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। तो ये आप लोग ऐसी, और ये कहाँ होता है ये हरदम याद रखिए कि मैंने जो बताया है वो पोजीशन पे नहीं होता है, वो होता है हमारे स्पाइनल, है ना। स्पाइनल में एक चैनल होता है जिसमें से हमारे जितने नर्व्स है जाते हैं, जो हम सुषुम्ना का चैनल है जहाँ पे हमारी कुंडलिनी ट्रैवल होती है ऊपर की ओर, तो वो भाग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने पंचकोशा से इसके लिए जोड़ा है कि पंचकोशा बहुत बड़ा साइंस है, जिसके कारण हम अपने शरीर, मन, आत्मा सभी को, इमोशन वगैरह को सबको बैलेंस रख सकते हैं। तो इसमें हमारे जो चक्रास है उसको कोश से कैसे जोड़ा गया है वो भी चार्ट में आपको बता रहा हूँ। आप लोग समझ गए ना, सबसे अंदर हमारा जो रहता है, जो हमारे आत्मा के ऊपर जो रहता है उसको आनंदमय कोश बोलते हैं। फिर उसके और ऊपर हम लोग अगर चलते हैं तो विज्ञानमय कोश है ना, विजडम बॉडी हमारी जो होती है वो होती है जो आज हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना। हमारा ज्ञानमय कोश, जो विज्ञानमय कोश है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा हैंडल करता है मन को, है ना, इमोशनल बॉडी, उसको थोड़ा सा ऊपर बताया है। तो अगर विज्ञानमय कोश आपका पावरफुल बन गया, आप बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं, समझने लगे हैं क्या हमारा मन है, क्या हमारा शरीर है, क्या आत्मा है, मैं कौन हूँ, वगैरह वगैरह, तो आपका फिर मन जो है ना वो आपका नौकर बन जाए। और अगर नौकर बनता है तो ही आप खुश रह सकते हैं। अगर वो आपका मालक बन जाए तो बहुत लोग होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, विज्ञान में कोर्स डेवलप नहीं होता है, हम लोग ज्ञान की तरफ जाते ही नहीं है, सिर्फ फिजिकल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, फिर इंद्रियां जो बोलती है हम उसके पीछे भागते हैं। हम तो एक पुरुष है, हम तो एक आत्मा है,
वो हमारा सुनना चाहिए, हम उसका नहीं सुनना चाहिए। तो फिर उसके ऊपर है हमारा प्राणमय कोश, जो हमारी एनर्जी बॉडी है ना, जैसे हम श्वास लेते हैं ना, प्राण में ये प्राणायाम वगैरह में क्या महत्व क्यों किया गया है इसको, कि हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसको 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 बढ़ाने का है, हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। आजकल क्या होता है कि स्ट्रेस आ गया तो हमारी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना, क्या करना, ये सब ज्ञानमय कोश के द्वारा आप अच्छे तरह से हैंडल कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका ब्रीदिंग एब्नॉर्मल होगा ही नहीं, है ना। ये हमारी एनर्जी बॉडी है, और ये पूरा हमारा अन्नमय कोश को, हमारे जितने 9 मेडिकल सिस्टम से उसको कंट्रोल करना है, प्राणायाम का काम है। हमारे जितना ऑक्सीजन इनपुट ज्यादा होगा उतना ही हमारे शरीर के मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारे जो नो मेडिकल सिस्टम से वो पावरफुल बनेंगे, वो इफेक्टिव बनेंगे। और आखिरी में जो आप देख रहे हैं, हम एक दूसरे के शरीर को देखते हैं, वो अन्नमय कोश है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये मैं बता रहा था कि इसको मैंने रिलेट किया है कि हमारे 5 कोश को 7 चक्रास के साथ। तो मैंने जो बताया है वही इसके अंदर दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये मैंने आपको बताया है कि हमारे 9 मेडिकल सिस्टम्स हमारे 7 चक्र से कैसे जुड़ी हुई है ना। तो आप देखेंगे बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर नीचे से चालू करते हैं हम मूलाधार चक्र, तो आप देखेंगे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका मूलाधार चक्र पावरफुल बन गया है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रॉब्लम जाएगा नहीं। आयुर्वेद में जैसे बहुत सिंपल कहा गया, जिसका डाइजेस्ट सिस्टम और जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा है तो उसको कोई डिजीज हो नहीं सकती है। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पावरफुल होना चाहिए। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब हम इंडिविजुअल इसमें जाएंगे चक्रास में, तो पता करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें करने से हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम या मूलाधार चक्र डेवलप होता है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, स्वादिष्टान चक्र। तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना भी है ना, तो रिप्रोडक्टिव जो हमारा पेल्विक रीजन है वो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये हमारी सेक्स एनर्जी और क्रिएटिव एनर्जी दोनों को अच्छा बनाती है। तो जो लोग सेक्स एनर्जी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए योग में या आयुर्वेद में सब जगह ये कहा गया है कि आपको अपनी सेक्स एनर्जी पे कंट्रोल करना है। तो कैसे करेंगे? तो अष्टांग योग बहुत ही सिंपल है, हर एक का सोल्यूशन आप देखेंगे तो योग में है, पर वही है कि आपको प्रॉपर गुरु, प्रॉपर टीचर चाहिए जो आपको आपके हिसाब से टेलर मेड डिजाइन करके आपको वो बताए कि आपको ये करना है, इतना करना है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर अपने मन से करते बैठेंगे तो आपको पता नहीं है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी लेके, तो डॉक्टर पहले पूरा आपका एनालिसिस करता है, फिर जो वो चीज जरूरत है वो ही देगा। हम लोग क्या करते हैं जनरली गार्डन्स वगैरह में देखा है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर आपके शरीर के, आपको मन के, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हिसाब से आपको, तो प्रॉपर गाइडेंस में बहुत जरूरी है सब चीज करना। फिर थोड़ा सा मणिपुर चक्र में जाते हैं हम लोग, उसके ऊपर है, उसमें बताया डाइजेस्टिव, स्केलेटरी और मस्कुलर सिस्टम। ओके, तो ये पूरी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए मणिपुर चक्र उसके लिए जवाबदार है। फिर अनाहत चक्र हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, विशुद्धि चक्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज्ञा चक्र नर्वस सिस्टम और सहस्त्रार चक्र हमारी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी बैलेंसिंग हार्मोन्स। अभी तनाव के कारण हमारी एंडोक्राइन सिस्टम इम्बैलेंस हो रही है, जिसके कारण फिर हमको सब साइकोसोमैटिक, हमारी जितने भी ग्लैंड्स है सब उसका डीएक्टिवेट हो रही है, वो उससे इफेक्टिव नहीं हो रहा है, जैसे पेनक्रियास वगैरह बाकी सब हो गया। तो ये क्या हो रहा है, हमारे सहस्त्रार चक्र जागरूक करना बहुत जरूरी है, और ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें जल्दी नहीं होता है। तो अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम परफेक्ट रखना है, आपको साइकोसोमैटिक डिजीज से दूर रहना है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, आप चाहते हैं कि आप हैप्पी रहे, हरदम ब्लिसफुल रहे, तो ये सब योग आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, तो यही मैं अष्टांग योग के बारे में बता रहा हूँ कि ये आपको ये करना ही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग चक्र में आ गए। तो आप लोग देख रहे हैं लाल कलर के हैं 4 पेटल्स थे उसके, और उसका जो शब्द है वो दम है, और ट्रायंगल आप देख रहे हैं, अंदर स्क्वायर देख रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी देखिए, इसके प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। इसका जो रूट चक्र है, सॉरी टू इंटरप्ट गुप्ता सर, एक्चुअली द रिमेनिंग टाइम इज 3 minutes now. It is not going to continue, I think. So I have sent a new ID password to the group.
आईडी पासवर्ड को लिंक को क्लिक करके फिर कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सेम आईडी पासवर्ड ही रखा है हमने, तो आप शायद वही लिंक सेम है ना, आईडी पासवर्ड अलग नहीं है ना? सेम है, अलग नहीं है। सो आप कोशिश करें कि आप फिर से उसी लिंक को क्लिक करके कनेक्ट हो। मैंने नए लिंक जो बनाई है वो भी मैंने ग्रुप पे डाली है, जो सर का ग्रुप मुझे मिला है व्हाट्सएप पे, उनको मैंने भेज दिया है सर, आपको भी भेजा है सर मैंने। हाँ, मुझे मिल गया है राधिका, और Yes. मुझे आशा, क्योंकि मैंने जितने लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं सबके पास ये लिंक ऑलरेडी है, तो उनको रीस्टार्ट करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि सेम आईडी है और सेम पासवर्ड है। Yes, that is why. So I am ending this meeting now. So please join again with new meeting.